Hello students, today we discuss class 12 chapters P block elements. In P block elements we have already discussed group 15. Now today topic is group 16. Group 16. Group 16. In group 16 that group was also called chalcogen groups. And another name is oxygen family, oxygen groups. In these groups present oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. In that elements is generally occurs in our atmosphere. In oxygen first, the most abundant in earth crust. Sulfur is a volcanic deposit that means कि जो ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है. Selenium and tellurium that are present in sulfide, and the last polonium is a radioactive. Okay, that is a radioactive elements, and the nature is oxygen non-metal, sulfur is also non-metal, selenium and tellurium metalloids, both are metals. Polonium is a poor metal, that are poor metal. So that is the general introduction of these compounds and general electronic configuration of this group. NH2 NP4, that means the last electron enter in p orbital, so that's why that is called a p block elements. So now we start properties. Physical property. Physical properties. First, atomic radius. Second, ionization energy. Third, electro affinity. Fourth, electron gain enthalpy. Fifth, electronegativity. Atomic radius. What is the atomic radius? First question, what is atomic radius? The distance between nucleus to outermost cell, that is called atomic radius. So now first I'll write oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. First question, when we go top to bottom, atomic radius increases or decreases. So when we go top to bottom, atomic radius increases. Why atomic radius increases? Why? Atomic radius is directly proportional to size. Okay, atomic radius is directly proportional to size. Size are inversely proportional to nuclear charge. Now correlate to each other. Size inversely proportional to nuclear charge, that means when size increase, nuclear charges decrease. When size increase, atomic radius also increases. So size increase, atomic radius increases, nuclear charges are decreases. So in that case, when we go top to bottom, atomic size increase, that means nuclear charges decrease. Nuclear charges decrease, so atomic radius increases. First reaction, first properties. Second, ionization energy. Atomic radius inversely proportional to size. Atomic radius directly proportional to size. Size is inversely proportional to nuclear charge, and this nuclear charge is directly proportional to ionization energy. Inversely proportional. Directly proportional. Nuclear charge is directly proportional to ionization energy. Now correlate to it. When atomic radius increases, size is also increases.
साइज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमको क्या लगेगी, कम लगेगी। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी कम लगेगी। ठीक है, तो ये था इसको कोरिलेट करने का कि आयोनाइजेशन एनर्जी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड एलिमेंट्स। तो ये हमारा एक क्या बोल सकते हैं, इसको फॉर्मूला के बेस पर याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा याद किया तो आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद रहेगा। एटॉमिक रेडियस है, इसको उल्टा लिख दो ऐसा, साइज एस एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसमें एक और लिख सकते हो, शेल। When cell increase, size increase, atomic radius increase, atomic radius increases, nuclear charges decreases, nuclear charges decreases, ionization energy भी decrease ही होगा। Electron affinity, electron affinity, electron affinity is directly proportional to nuclear charge। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी न्यूक्लियर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब न्यूक्लियर चार्जेस अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी न्यूक्लियर चार्जेस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने पे ये कम हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज की। मतलब जो जो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो मैंने पूरे आपकी इतनी प्रॉपर्टीज को एक बार में बता दिया कि सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीज होंगे। अब न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीज होंगे, आयोनाइजेशन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गया हमारा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एक बार में पढ़ ली। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि टॉप टू बॉटम जाने पे ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, सॉरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज and electronegativity decrease। हो गया, हमने एक बार में सारे को पढ़ लिया। ठीक, ना नेक्स्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, when we go top to bottom, boiling and melting point both are increases। Why increases? Because boiling and melting point is depend upon the molecular mass, and when we go top to bottom, molecular mass is also increase। van der Waals फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए मास के साथ साथ van der Waals फोर्स भी बढ़ रहा है, और इसलिए इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। नाउ इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP4। ये हम ऑक्सीजन की एक ले लें तो 2 और 6। That means in last shell oxygen has only 6 electrons, so it need to 2 electron for completing oxygen, so that's why oxygen gaining 2 electrons, so it oxidation state is -2, so it oxidation state -2, oxygen show only one oxidation state -2, it can also variable oxidation state because absence of vacant d orbital, so that's a -2, but some exception with oxygens, some compounds just like the peroxide H2O2 it show -1 oxidation state, OF2 it show +2 oxidation state, and O2F2 it show
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सम एक्सेप्शन। आप इसमें से निकाल के देखो, इनका निकलेगा ये ऐसा। H2O2 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बन होता है, 2 हो गया प्लस 2x, 2 यहाँ से गया -2 और ये 2x यहाँ से अपॉन में जाएगा तो ये आएगा -1, है ना। तो ये -1, ये +2 और ये +1, ये 3 कंपाउंड है जो एक्सेप्शन शो करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सल्फर टू टेलुरियम, दैट्स सो -2 2 + 6, यहाँ से यहाँ तक ये -2 से -2 से -2 2 + 6, -2 2 + 6। Why so -2 + 6? Because in last cell +4 and 2, 4 + 2 टोटल कितने हो गए 6, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल सकते हैं, दिख रहा है यहाँ से आपको, मतलब ये -2 ले सकते हो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक ये बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे इतने तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मच मोर स्टेबल। व्हाई +4 ऑक्सीडेशन इज मच मोर स्टेबल? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको दिख रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा हुआ है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि इस लास्ट शेल में सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, s का नहीं होगा। इन s का क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले के जो ऑर्बिटल्स है वो फुलफिल्ड है, f और d फुलफिल होने की वजह से उसका सिल्टिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस और इस s के बीच का न्यूक्लियस चार्जेस बढ़ जाता है। न्यूक्लियस चार्जेस बढ़ने की वजह से हम s के इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसको हमने कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमको डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। केवल p से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। तो ये इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पोलोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, ये अनस्टेबल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। रेड्यूसिंग कैरेक्टर, reducing character when we go top to bottom. When we go top to bottom, reducing character increases or decreases when we go top to bottom. reducing character reducing agent की तरह बिहेव करना। reducing agent की तरह बिहेव करना मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना या तो हमारे में से ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज होता है। वाई डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर? देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन +6 होगा, +6 से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी? सल्फर की। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे ये +6 की बजाय +4 देना शो ज्यादा करेगा। तो ये कंपाउंड जो होंगे अगर +4 की कंडीशन पे है तो ये +6 पे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसको स्टेबिलिटी शो करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन और देने की कंडीशन पे नहीं है। जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है वाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties. First, reaction with H2. Reaction with H2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। When we go in this case, oxygen form H2O, sulfur form H2S, selenium form H2Se, tellurium form H2Te. Okay, when we go top to bottom, now hydrogen react with that compound, for example H2 plus O2, then form H2O. जनरल रिएक्शन होता है इसका, ठीक है।
क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट, acidic strength increases or decreases when we go top to bottom, acidic strength increases or decreases। so याद रखना, यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला बता सकते हैं, acidic strength is directly proportional to size। साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना उतना ही आसान हो जाएगा, और जितनी जल्दी वो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर का शो करेगा। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आता है कि हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है, बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है H2O एक्सेप्शन, H2O इज a ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू H2S। H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है, क्यों? तो इसका आंसर है कि H2O फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। H2S बॉइलिंग पॉइंट सो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्वेश्चन है कि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, तो H2S हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज H2, अच्छा पहले जो जनरल सा क्वेश्चन है जो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों इसमें बन रहा है, इसमें क्यों नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मच मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये दो तरीके का होता है, एक इंट्रा और एक इंटर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट्स व्हाई इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बट इन दैट केस, इन दिस केस हाइड्रोजन और सल्फर कैनॉट मच मोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, एक और ज्यादा डिफरेंस नहीं करने की वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक चीज और आता है कि H2O जो होते हैं लिक्विड में होते हैं और H2S गैस फॉर्म में होते हैं, क्यों? इसका भी आंसर वही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास, बहुत नहीं पास आ जाते हैं, तो ये लिक्विड में होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, गैस केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कोई ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड बनाएगा नहीं। सल्फर जो होता है SO2 और SO3 के फॉर्म में रहता है। सेलेनियम इज ऑल्सो SeO2, टेलोरियम इज ऑल्सो TeO2। यहाँ पे देखो हमने सिर्फ सल्फर का 2 कंपाउंड देखा, बाकी सबका एक ही कंपाउंड देखा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका +4, इसका +4। अब देखो +4 तो हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो +4 मच मोर स्टेबल शो करता है, इसलिए ये +4 बना रहे हैं, +6 भी, क्योंकि दोनों शो करता है, लेकिन ये सिर्फ +4 शो करता है इसलिए डाइऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इसमें 2 इसमें 1 क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे +4 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बट इन वन क्वेश्चन सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट इन सल्फेट, सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, सल्फेट के फॉर्म में होगा लेकिन SO4 2- के फॉर्म में होगा, ये कोई कंपाउंड ऐसे बनाएगा जिसमें से बनेगा ये। ठीक है, तो ये जैसे SO2 SO3 बने वैसे SO4 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज पॉसिबल सल्फर सो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, नो इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई सल्फर फॉर्म SO2 एंड SO3। ठीक है, ये SO4 के फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है। दूसरा कि सल्फर जो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू, सल्फर की बात करें एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय
तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीडाइज एक बार फिर होगा SO3 का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये +4 से +6 में आने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हमने भी देखा ना, गुड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है, इसलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं H2SO4 के प्रिपरेशन में, हम देखेंगे आगे। तो ये था हमारा सल्फर का। अच्छा, क्वेश्चन है कि टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी ऑक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? When we go top to bottom, oxidizing power of this group increases. ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीजन को निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इसका साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से ऑक्सीजन को रिप्लेस करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन जितनी जल्दी रिमूव होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, नाउ टुडे we have completed physical properties and some chemical properties, oxidation also of group 16, and this is a part 1 of 16 group. So next class we discuss chemical properties and some compounds of oxygen and sulfurs. Okay, goodbye.